Good morning, all of you. In today's part of surface chemistry, we will just take about the introduction and the basic. So first of all, we will see about the definition of the surface chemistry. Means what is the surface chemistry? As the name suggests, there is something interaction in between the surfaces of the different substances. So what is surface chemistry? The branch of chemistry which deals with the study of interaction between the surfaces of different substances is called surface chemistry. तो आप उसे surface chemistry कहेंगे. तो जो surface chemistry है जिसके दौरान जो interaction होती है which takes place in between the surfaces of the different substances, तो वो substance आखिर हैं कौन? So the substances which are involved during the interaction between their surfaces are number one, adsorbent. So what is adsorbent? As you can see in the diagram in the slide, the substance, the adsorbent has two parts. One is the surface part, that is the exterior part. Other one is their bulk part, that is the interior part. So what is adsorbent? Adsorbent is a substance on which the adsorption process takes place. So the substance on which the adsorption process takes place is called adsorbent, while the other substance, that is the adsorbate. So what is adsorbent? Adsorbent are those substances which get adsorbed on the surface of the other substance during the adsorption process is called the adsorbate. आपको इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है. जो बीच में हमने ब्लैक कलर का जो डायग्राम के अंदर सब्सटेंस दिखा रखा है, जो बड़ा सब्सटेंस है ब्लैक कलर का, व्हाट इज दैट? दैट इज एडजोर्बेंट. और उस एडजोर्बेंट के टू पार्ट है. वन इज द सरफेस पार्ट, दैट इज द एक्सटीरियर. अदर वन इज द इंटीरियर पार्ट, जिसे आप बल्क कहते हैं. अब उसके ऊपर जो आपके ग्रीन कलर के स्मॉल स्मॉल सब्सटेंस है वो आए और वो क्या हो गए? दे गेट स्टिक on the surface of the adsorbent. तो जो आके स्टिक हो गए उसके सरफेस के ऊपर, आपने क्या कहते हैं? आप उसे कहते हैं adsorbate. आप उसे क्या कहेंगे? adsorbate. So the substances which are involved during that interaction process in between the surfaces of these different substances, so these different substances are adsorbent and the adsorbate. Now further we will see about the processes which occur during the interaction between the surfaces of the different substances. So the process which occur during that particular thing, that is the adsorption, absorption, sorption, and so on. There are many other processes. So first of all, we will discuss about the adsorption process. As the name suggests, adsorb. Adsorb means just stick on their surface. So what is adsorption? Adsorption is the process in which the one type of the particles get stick on the surface of the other substance without going into the bulk. Bulk के अंदर ना जाए, सिर्फ surface के ऊपर particle आके अगर stick हो जाते हैं without going into the bulk, then the process called adsorption. तो आप प्रोसेस को क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन. तो जो सब्सटेंस था जिसके ऊपर ये प्रोसेस चली उसे क्या कहते हैं? अभी आपको बताया था, दैट इज द एडजॉर्बेंट. और जो सब्सटेंस आके स्टिक हो गए सरफेस के ऊपर, उन्हें आप क्या कहते हैं? जो ग्रीन कलर के सब्सटेंस आपको दिख रहे हैं, व्हाट आर दीज आर दी एडजॉर्बेट. आप उसे एडजॉर्बेट कहते हैं. अब जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है इसको हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं. किस मींस में? अगर हम स्पेसिफाई कर दें तो एक नई प्रोसेस आ जाती है जिसे आप कहते हैं ओकल्शन. स्पेसिफाई कैसे करें? स्पेसिफाई कर देंगे कि हु इज एडजॉर्बेंट. इफ द एडजॉर्बेंट इज ए मेटेलिक सरफेस, जो एडजॉर्बेंट है वो कोई मेटल हो. और एडजॉर्बेट कौन हो? एडजॉर्बेट आर दी गैसियस पार्टिकल. जैसे अभी हमने रेड कलर से वहां पे लिखा है, एडजॉर्बेंट के ब्रैकेट में हमने क्या लिखा? मेटेलिक सरफेस. और एडजॉर्बेट के ब्रैकेट में हमने क्या लिखा? गैसियस पार्टिकल्स. मींस हमने फिक्स कर दिया है कि एडजॉर्बेट तो कौन है? एक मेटल है. एडजॉर्बेट कौन है? कोई गैसियस पार्टिकल है. नाउ द एडजॉर्प्शन प्रोसेस takes place is called occlusion. Occlusion is a process. Occlusion कैसी प्रोसेस है? The process in which the gaseous particle, जो कौन है? which are adsorbate, get deposited, get stick on the surface of the adsorbent. Who are adsorbent? Metallic surface without going into the bulk is called as the ओकल्शन. आप उसे ओकल्शन कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमने अभी आपको बताया ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस की स्पेसिफिकेशन हो गई है. तो आप यहाँ पे ओकल्शन लिख देंगे क्योंकि ये डेफिनेशन अब किसकी हो चुकी है? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ओकल्शन. तो अब आप यहाँ पे एडजॉर्प्शन तो है ही है, लेकिन क्योंकि इसकी स्पेसिफिक टाइप बन गई तो आप इसे क्या कहेंगे? ओकल्शन कहेंगे. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनके एग्जाम्पल. व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ द एडजॉर्प्शन? देखो, जब कभी भी आप कोई भी चीज परचेज करने के लिए जाते हैं, चाहे आपने
कोई टीवी परचेज किया हो, चाहे आपने शूज परचेज किए हो, तो जब आप उसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, उसके अंदर आप देखेंगे देयर आर स्मॉल पाउचेस, देयर आर द स्मॉल पाउचेस इन द बॉक्स, दीज आर नथिंग बट दीज आर द पाउचेस ऑफ द सिलिका जेल। वो सिलिका जेल के पाउच होते हैं। सिलिका जेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिका जेल हियर? सिलिका जेल हियर एक्ट एज द एडजॉर्बेंट, वो एडजॉर्बेंट का काम करता है। तो जितनी भी नमी होती है, मॉइस्टनेस होती है कंटेनर के अंदर, उस सभी मॉइस्टनेस को कौन एडजॉर्ब करता रहता है? सिलिका जेल। वाटर वेपर्स क्या है वहां पे? वाटर वेपर्स वहां पे काम करते हैं एडजॉर्बेट का। तो सिमिलरली इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम, जो हमारा पहला एग्जांपल जो हमने लिखा एग्जांपल ऑफ द एडजॉर्प्शन में, कि द वाटर वेपर्स प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द सिलिका जेल गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलिका जेल। सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर क्या हो गए? वो एडजॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? मॉइस्टनेस नहीं होगी, तो जो भी आपका सब्सटेंस है, कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है, कोई आपके शूज हैं, तो वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपके प्रिजर्व हुए रहेंगे, वो आपके खराब नहीं होंगे बिल्कुल भी। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो, चारकोल रखा होता, क्या रखा होता आपके पास? चारकोल है किसी भी कंटेनर के अंदर, या किसी मान लीजिए आपके पास ये कोई सरफेस है, हम इस सरफेस के ऊपर क्या डाल दें? यहाँ पे चारकोल पाउडर डाल देते हैं। देखो इसके ऊपर मान लीजिए चारकोल पाउडर है ये, और यहाँ पे क्या आ जाए इन्वायरमेंट के अंदर? अगर हम यहाँ पे ले आए अमोनिया गैस के इन्वायरमेंट के अंदर, NH3 के इन्वायरमेंट के अंदर, तो क्या होगा? जो अमोनिया गैस है दैट गेट एडजॉर्ब्ड, ये क्या हो जाएगी? दैट गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल। चारकोल के सरफेस के ऊपर वो जाके स्टिक हो जाती है। तो मीन्स कौन सी प्रोसेस चली आपकी? एडजॉर्प्शन प्रोसेस वहां पे चलती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपके इंक है, आपने उसमें चोक को उसमें डिप किया, देखो उसको ब्रेक किया, ब्रेक करते हैं, देखो आप लेफ्ट साइड वाले सरफेस को देखें, आप दोबारा से देखेंगे, जब चोक को हम ब्रेक करते हैं तो अपने लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट वाले पार्ट को आपको दिखाई देगा, टूटने के बाद देखो वो व्हाइट दिख रहा है अभी आपको। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इंक है वो एब्जॉर्ब नहीं, वो एडजॉर्ब हुई है। मींस द इंक प्लेस्ड in contact with the chalk get adsorbed on the surface of the chalk। चौक के सरफेस के ऊपर वो क्या हो जाती है? एडजॉर्ब हो जाती है। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस चली है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। एब्जॉर्प्शन तो वो होता व्हेन द वन टाइप ऑफ पार्टिकल गो इनटू द पल्प, वो डेफिनेशन अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट डेफिनेशन और देख लें, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। मींस अभी आपने देखा देयर आर द टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आपका कौन है? वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आपके एडजॉर्बेंट, और उसके ऊपर जो पार्टिकल आके स्टिक हुए वो कौन है? वो है आपका एडजॉर्बेट। तो जब एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जब एडजॉर्बेट के पार्टिकल आके स्टिक होते हैं, उनके सरफेस के बीच में इंटरेक्शन होती है, समथिंग इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। व्हेन समथिंग इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज्ड, और दैट रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे हम डेफिनेशन को, कैसे स्पेसिफाई करेंगे? कि हमारे पास जो एडजॉर्बेट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अमोनिया का ले लो, चाहे हमने अमोनिया गैस जो ली, वो बोलो कितनी ले ली हमने? 1 मोल। तो 1 मोल हमने एडजॉर्बेट ले लिया, और वो 1 मोल जब एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, तो कितनी हीट निकलती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है? दैट रिलीज्ड एनर्जी और द हीट जो रिलीज हुई है, दैट कॉल्ड द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। सो व्हाट इज द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन? द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द एडजॉर्बेट get adsorbed on the surface of the adsorbent is called as the heat of adsorption। अब उसे heat of adsorption कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एडजॉर्प्शन प्रोसेस आखिर है क्या। जैसे अभी हमने देख लिया, अब इसका कंपैरिजन करेंगे हम एब्जॉर्प्शन के साथ। तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन और सेकंड वन कौन सी होगी? एब्जॉर्प्शन। तो अब हम दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं। ये हमने देख लिया, पार्टिकल का सरफेस, जो एडजॉर्बेंट का सरफेस हमने देखो सरफेस लिखा है, आपके जो एडजॉर्बेंट है उसका बल्क, जो इंटीरियर पार्ट है वो बल्क कहलाता है, एक्सटीरियर जो पार्ट है वो आपका सरफेस कहलाता है। तो नाउ व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एडजॉर्प्शन, adsorption is the process in which the particles of one type of the substance gets deposited, get stick on the surface of the other substance without going into the bulk, without going into the bulk में ना जाए, सिर्फ सरफेस के ऊपर जाके स्टिक हो जाए। जैसे आपके लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है, पार्टिकल सिर्फ स्टिक के ऊपर है, सिर्फ स्टिक हो गए ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर जाके स्टिक हो गए, तो वो आपकी एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। इसके रिवर्स अगर हम देखें कि पार्टिकल कहाँ पे चले जाएं, इफ द पार्टिकल्स गो इनटू द बल्क, particle get deposited into the bulk of other substance, the process called absorption। तो जैसे आपको सेकंड डायग्राम में राइट में आपको दिख रहे हैं कि जो आपके पार्टिकल है वो कहाँ पे गए, they go into the bulk of the other substance। So the process in which the one type of particle go into the bulk of the other substance called the absorption। ये है AB absorption, वो है AD adsorption।
मींस सरफेस के ऊपर स्टिक हो तो एडी एडजॉर्प्शन, अगर बल्क में पार्टिकल चले जाते हैं तो एबी एब्जॉर्प्शन आप उसे कहते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। और अभी आपने देखा एडजॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है, सिर्फ सरफेस पे चलती है, सो इट इज ए सरफेस फिनोमेना, और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहाँ पे चलती है, बल्क में चलती है, सो इट इज ए बल्क फिनोमेना। और जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है ये इनिशियली तो बड़ी फास्ट होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये स्लो हो जाती है टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाता है तो ये प्रोसेस क्या हो जाती है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है इट इज यूनिफॉर्म, इट टेक्स प्लेस एट ए यूनिफॉर्म रेट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आ जाता है यहाँ पे कि जो और एग्जांपल अगर हम देखें एब्जॉर्प्शन का, जैसे आपने ये देखा कि कोई कंटेनर है आपके पास और वहां पे आपने क्या, उसके अंदर वाटर है आपके पास, और आपने बाहर से क्या डाल दिया, अमोनिया उसके अंदर डाल दिया। तो क्या होगा, जब भी आप अमोनिया और वाटर के बीच रिएक्शन करेंगे तो व्हाट विल हैपन, तो देखो ये आपके पास अमोनिया है जो आपने बाहर से डाला, ये आपकी गैसेस फॉर्म में, आपने इसको किस में ऐड कर दिया, आपने इसको वाटर के अंदर ऐड कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, ए सिंपल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। देखो NH4, देखो NH3 के अंदर 3H है, एक H आपके वाटर की तरफ से आया NH4, और यहाँ पे बोलो कौन बच गया, OH, मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म। तो सॉल्यूशन बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय पासिंग द अमोनिया गैस, by passing the ammonia gas in the container of the water, या आप दोनों को वेपर फेज में लेके तब भी आप रिएक्शन कर सकते हैं, वाटर के अंदर डाल के कर सकते हैं। तो इस टाइप से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। सो अमोनिया गैस प्रेजेंट इन ए वेसल, आप पहले से अमोनिया गैस को भी वेसल में ले सकते हैं, वाटर ऊपर से ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। यानी आप कैसे भी, कहने का मतलब ये कि आपको इन दोनों को आपस में मिक्सअप करना है। आमतौर पे हम वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर अमोनिया गैस को पास करते हैं और फिर जाके आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल, ये आपने देखा होगा जब भी आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं उसके दौरान जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है लेबोरेटरी में, जब आपने कोई सिंथेसिस की, चाहे इनऑर्गेनिक की चाहे ऑर्गेनिक सिंथेसिस आपने की, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप ऐसा करते हैं कि उसको ड्राई करना होता है, उस कंपाउंड को आपको क्या करना होता है, उसको आप ड्राई करेंगे। ड्राई कैसे करें आप उसको, तो जो भी कंपाउंड है उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत मॉइस्टनेस बच गई है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन करेगा उसको एब्जॉर्ब, उसको एब्जॉर्ब करेगा आपके कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करे, वो कोई और नहीं, जैसे ये जो डेसिकेटर बोलते हैं, आप इसके आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट रखा है राइट साइड में, दैट कॉल्ड एज द डेसिकेटर। तो मींस इसमें क्या होगा, इस डेसिकेटर के अंदर बिल्कुल बॉटम में देखें तो बिल्कुल बॉटम में जो आपको ये सब्सटेंस दिख रहा है ये कोई और नहीं, जैसे ब्लूइश कलर का आपको सब्सटेंस दिख रहा है, तो इट मींस अगर ये कॉपर सल्फेट है तो ये ठीक नहीं रखा है यहाँ। आप क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप जानते हैं व्हेन कॉपर सल्फेट इज इन एनहाइड्रस फॉर्म दैट इज कलरलेस, वो कलरलेस होता है। अगर वो ब्लू कलर के अंदर हो गया है इट मींस वो CuSO4.5H2 बन चुका है, इट मींस अब ये हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको डेसिकेटर में इसी टाइप से नीचे CuSO4 रखा हुआ दिखाई दे जाए और उसका ऐसे ब्लू कलर हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट आउट, आप उसको बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल के इस कॉपर सल्फेट को जो यहाँ पे आपको रखा हुआ दिख रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म, आप इसको बाहर निकालें, कंटेनर के अंदर रखें, चाइना डिश के अंदर रखें, आप इसको हीटअप कर देंगे सबसे पहले, और हीटअप करने के बाद जब आप इसको हीट करेंगे जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है वो लॉस्ट हो जाएगा, और जो कॉपर सल्फेट .5H2 जो हमने लिखा है नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू, जब आप इसको देखो ऐसे हीट करेंगे बाहर निकाल के कंटेनर के अंदर डाल के, इन चाइना डिश के अंदर आप इसको डालेंगे सबसे पहले, और चाइना डिश के अंदर इसको डाल के और आप इसको हीट करेंगे, और हीट करने के बाद ये कलरलेस हो जाएगा क्योंकि इसके जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन वो लॉस्ट हो जाएगा, CuSO4 बन जाएगा। तो ये नाउ इट इज व्हाइट इन कलर, ये अब व्हाइट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको निकालें, आप देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉपरली आप इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके पास जो ये आपका कंटेनर है, देखो ये जो डेसिकेटर है, अब इसके अंदर देखो आपके पास जो सब्सटेंस आपको ड्राई करना है, आप ऊपर से कवर हटाते हैं डेसिकेटर का, और इसके अंदर देखो ऐसे कोई चाइना डिश रखते हैं, देखो ऐसे, और इसके अंदर जो भी सब्सटेंस, देखो मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ये हमें ड्राई करना है, हमने सब्सटेंस देखो इस चाइना डिश के अंदर रख दिया। कुछ देर के बाद क्या होगा, इस चाइना डिश के अंदर से जो भी आपका इसके अंदर हाइड्रेटेड फॉर्म थी, नमी थी, वो कौन एडजॉर्ब कर लेगा, वो सारी जो वाटर वेपर जाएंगे, और वो किस में कौन एडजॉर्ब करता रहेगा, बोलो यहाँ पे कॉपर सल्फेट, और दोबारा ये CuSO4.5H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मींस अगर ऐसा होना स्टार्ट हो गया तो इट मींस आपका जो डेसिकेटर है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये हमने बताया एब्जॉर्प्शन के बारे में, थोड़ा लेबोरेटरी के बारे में भी बताया कि आप इसको कब और किस तरह से डेसिकेटर को यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे लैब के अंदर, किस पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है, मींस किस पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो एंड प्रोडक्ट जो आपका बना, जो प्रोडक्ट बना, अगर उसको आप ड्राई करना चाहते हैं तो अब इस टाइप से आप उसको डेसिकेटर के अंदर रख देते हैं।
और ताकि बिल्कुल भी एयर का पैसेज ना रहे, तो जो ये कवर है यहाँ पे, इसको बिल्कुल अच्छे से आप टाइट रखेंगे ऊपर से। इसके अंदर आप ग्रीस आती है, उसे आप कहते हैं वैक्यूम ग्रीस। तो आप सबसे पहले क्या होता है, जो ये कवर को हटा के, डेसिकेटर को कवर को हटा के, जो इसका सरफेस है ऊपर जहाँ पे आप ये कवर रखेंगे, आप इसके ऊपर पहले वैक्यूम ग्रीस लगा देते हैं। बोलो यहाँ पे बीच में कौन होता है, यहाँ पे देयर इज ए वैक्यूम ग्रीस, यहाँ पे वैक्यूम ग्रीस लगाते हैं हम। क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, वैक्यूम ग्रीस, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे देयर विल बी नो एयर पैसेज, कोई एयर पैसेज ही नहीं बचेगा। अब यहाँ से कोई एयर भी अंदर नहीं जाएगी, कोई मॉइस्टनेस अंदर नहीं जाएगी। तो इट मींस अब प्रॉपरली अच्छी तरीके से आप इस आपका जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने सिंथेसाइज किया है, आप डेसिकेटर के अंदर चाइना डिश में डाल के आप उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से आप उसको ड्राई कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इन बातों को भी ध्यान रखेंगे जो आपको बता दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है सॉर्प्शन। नाउ व्हाट इज सॉर्प्शन? सॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच the one type of substance gets stick on the surface and also go into the bulk of the adsorbent। जो adsorbent है आपका, उस adsorbent के bulk में भी चले जाएं और उसके सरफेस के ऊपर भी स्टिक हो जाए। मींस आपकी दोनों प्रोसेस अगर साइमल्टेनियस चल रही है, मींस इफ बोथ एडजॉर्प्शन एंड द एब्जॉर्प्शन both process takes place simultaneously, then the process called sorption। तो आप उसे sorption कहते हैं। Means now what is sorption? The process in which the one type of particle get stick on the surface and also go into the bulk of the other substance, the process called as the sorption। आप उसे sorption कहते हैं। और in other word you can say that the process in which the adsorption and the absorption process takes place simultaneously, then it is called as the sorption। तो आप उसे sorption कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन एज द नेम सजेस्ट, डी का मतलब निकल जाना। क्या निकल जाना? जो सॉर्प्शन के दौरान हुआ था। क्या हुआ था सॉर्प्शन के दौरान? पार्टिकल कहाँ कहाँ पे गए थे? पार्टिकल सरफेस के ऊपर भी थे और पार्टिकल बल्क के अंदर भी थे। अब डी का मतलब निकलना है। कहाँ से निकलना है? सरफेस के ऊपर से भी लॉस हो जाए, बल्क के अंदर से भी लॉस हो जाए। तो मीन सॉर्प्शन की जो रिवर्स है दैट कॉल्ड एज द डीसॉर्प्शन। सो व्हाट इज डीसॉर्प्शन? द प्रोसेस इन विच द एडजॉर्ब्ड and the absorbed substances are removed both from the surface and the bulk of the adsorbent is called as the desorption। तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? वो आपकी डीसॉर्प्शन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल सॉर्प्शन के, जैसे डाइंग प्रोसेस के दौरान जब आप किसी क्लॉथ को, फैब्रिक को, कॉटन फैब्रिक को जब हम डिप करते हैं इन द डाई, तो क्या होता है? द डाई गेट एडजॉर्ब्ड एज वेल एज एब्जॉर्ब्ड ऑन द कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर के ऊपर वो क्या हो जाती है? एडजॉर्प्शन प्रोसेस भी चलती है और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी चलती है। तो दोनों की दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती है। तो मींस सॉर्प्शन प्रोसेस हुई यहाँ पे। आप क्रोमेटोग्राफी में देखें, ये जो डायग्राम आपके सामने, ये डायग्राम तो है आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। देखो सबसे पहले ऊपर से जो हमने सब्सटेंस डाला था, वही कॉलम के अंदर क्या हुआ जाके, जो स्टेशनरी फेज है, देखो यहाँ पे स्टेशनरी फेज था। क्या हुआ? जो सैंपल हमने डाला वो पार्टिकल क्या हुए? एडजॉर्ब्ड हो गए। उसके बाद फिर हम ऊपर से अपना सोलवेंट डालते हैं, इलिवेंट डालते हैं, जो हमने नीचे लिख रखा है, ये हमने पहले ऊपर से डाला, सोलवेंट डाला। तो सोलवेंट क्या करता है? जो भी हमने ऊपर से रिएक्ट आपके डाले थे, मिक्सचर जो डाला था, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट थे, देखो ओरिजिनल सैंपल हमने ऊपर रखा, वो एडजॉर्ब हो गया था ग्रीन। अब देखो डिसॉर्प्शन हुई, वो प्रोसेस चल, वो आपके साथ साथ वो आगे मूव कर पाए। तो मींस दो प्रोसेस यहाँ पे इकट्ठी हुई है। पहले एडजॉर्प्शन हुई, जब हम सैंपल हमने लिया तो कौन सी प्रोसेस चली आपकी? एडजॉर्प्शन। उसके बाद जब सोलवेंट आपने ऊपर से डाला तो कौन सी प्रोसेस चल पड़ी? डिसॉर्प्शन। में जो आपका सैंपल था जो एडजॉर्ब हो गया था, जब हम ऊपर से डालते हैं अपना सोलवेंट, तो वो जो सोलवेंट है वो उसको मूव करके चलता है, अंडर ग्रेविटी भी लेके चलता है, उस इंटरेक्शन को ब्रेक करते हुए चलता है। तो जितने भी कंपोनेंट है, देखो अलग अलग कलर के दिखाई दी, कोई ग्रीन, कोई आपका पिंक है, कोई येलो है, तो उनकी एडजॉर्प्शन पावर अलग अलग थी, इसलिए उनकी मूवमेंट भी अलग अलग हुई है। तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपकी थी। इसके साथ साथ देखो आपने ये भी तो देखा होगा कि मान लीजिए अगर हम करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी आपने बिल्कुल ऐसा ही देखा है कि हम एक पेपर स्ट्रिप लेते हैं, देखो ऐसे, और पेपर स्ट्रिप के ऊपर आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपके पास एक जो कोई सैंपल आपने लिया, देखो चाइना डिश के अंदर आपने कोई सैंपल लिया और उसके अंदर बाहर से आपने कोई सॉल्वेंट डाल दिया, मीन्स आपने सॉल्यूशन बना लिया। इसके अंदर कोई कंपाउंड था और ये क्या बन चुका है? अब इस सॉल्वेंट डालने के बाद इसमें ये सॉल्यूशन बन चुका है। और जब ये सॉल्यूशन बना तो आपने क्या किया? इसके अंदर देखो कैपिलरी ट्यूब ली, देखो ऐसे बारीक जो होती है, बिल्कुल नैरो माउथ की कैपिलरी ट्यूब ली, उसके अंदर ये सॉल्यूशन देखो राइज हो गया। फिर उस कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से आपने क्या किया? देखो यहाँ पे एक हल्का सा स्पॉट लगा दिया। उसके बाद आपने क्या किया? जो आपकी पेपर स्ट्रिप थी, इसको आपने किस में रखा? एक कंटेनर के अंदर रखा, एक जार के अंदर रख दिया, जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से क्या था?
आपकी कोई ना कोई सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट जो आपका ये ओरिजिनल स्पोर्टिंग मार्क है उससे नीचे रहना चाहिए आपका स्पोर्ट, देखो जैसे हमने दिखाया उससे नीचे ही है। उसके बाद ये सॉल्वेंट क्या करेगा, ये राइज करेगा, देखो ऊपर की तरफ। जब वो राइज करेगा, सबसे पहले जो आपका ये सैंपल था, ध्यान दें, सबसे पहले जो आपका ये सैंपल था, जब आपने इसकी स्पोर्टिंग की तो कौन सी प्रोसेस चली, एडजॉर्प्शन। कौन सी प्रोसेस चली सबसे पहले, एडजॉर्प्शन। मतलब जो ये सैंपल था ये इसके सरफेस के ऊपर, पेपर के स्ट्रिप के ऊपर वो जाके स्टिक हो गया, एडजॉर्प्शन प्रोसेस चली। फिर जो आपने नीचे सॉल्वेंट ले रखा है, जो पेपर स्ट्रिप जब आप इसमें रखी आपने सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट अब देखो राइज किया उसने कैपिलरी रिएक्शन से। तो ये जो इसके अंदर क्या पता, जो आपने ये मिक्सचर लिया है, जो सॉल्यूशन लिया है, इसके अंदर क्या पता ए सब्सटेंस हो, क्या पता बी हो, सी हो। जो आपने कंपाउंड लिया था शुरू में, ये कंपाउंड नहीं, आपका मिक्सचर था। और मिक्सचर के अंदर मान लीजिए 3 कंपोनेंट है, ए बी सी। उसको आपने सॉल्वेंट के अंदर डाल के और उसको सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन को कैपिलरी ट्यूब से, देखो ये कैपिलरी ट्यूब थी यहाँ पे, कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से आपने वो स्पोर्टिंग कर दी आपकी पेपर की स्ट्रिप के ऊपर। ये पेपर की स्ट्रिप है, देखो यहाँ पे, ये कौन थी बोलो, यहाँ पे पेपर की स्ट्रिप है आपकी। जो पार्टिकुलर पेपर आता है, वाटमैन फिल्टर पेपर कहते हैं, जो थोड़ा थिक होता है, उसके अंदर से आप सीजर की हेल्प से आपने स्ट्रिप आपने कट की थी, उसके ऊपर आपने स्पोर्टिंग की सैंपल की। सॉल्वेंट की हेल्प से जब ये चला तो ये स्पोर्ट जब ऊपर मूव करता है, देखो 1, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये पेपर यहाँ सबसे ऊपर तक आपका वेट हो गया था, देखो गीला हो गया था। जहां तक गीला होता है उसे तो आप क्या कहते हैं, दैट कॉल्ड एज द सॉल्वेंट फ्रंट, उसे तो आप सॉल्वेंट फ्रंट कह देते हैं। तो मीन्स क्या हुआ, जो ये सैंपल है, मान लीजिए किसी को ए कह दो, किसी को बी कह दें, किसी को सी कह दें, तो ये अंडर डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट तक जो मूव कर पाए। क्यों कर पाए, क्योंकि पहले तो एडजॉर्प्शन हुई थी, सैंपल जब हमने स्पोर्टिंग की तो उस दौरान ये जो इनिशियल स्पोर्ट है आपका, इनिशियल देखो ये स्पोर्ट है जहाँ पे सैंपल जो हमने लगाया था, ये आपका क्या है, हियर इज द इनिशियल स्पोर्ट, यहाँ पे आपका इनिशियल स्पोर्ट है। तो जो इनिशियल स्पोर्ट था वहां पे एडजॉर्प्शन प्रोसेस चली। बोलो कौन सी प्रोसेस चली यहाँ पे, तो यहाँ पे चली थी सबसे पहले एडजॉर्प्शन। और उसके बाद जब हमने सॉल्वेंट के अंदर इसको डिप किया पेपर को, तो उसके बाद क्या हुआ, आपके जो कंपोनेंट थे दे मूव टू द डिफरेंट एक्सटेंट, इनका डिफरेंशियल माइग्रेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जिसे आप कहते हैं। तो जो डिफरेंशियल इनका मूवमेंट हुआ है एबीसी का, वो क्यों हुआ, ड्यू टू द डीसॉर्प्शन प्रोसेस। बोलो कौन सी प्रोसेस चली है साथ के साथ, डीसॉर्प्शन। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी मैंने अभी आपको बताई। और पहले जो हमने ये कॉलम ट्यूब दिख रही है, दैट इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इनकी डिटेल अलग से हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी, फुल डिटेल में आप वहां पे भी इसके बारे में पढ़ पाएंगे। तो फिलहाल हमें सिर्फ आपको यही समझाना था कि क्रोमेटोग्राफी इसका दूसरा एग्जाम्पल था, जिसके दौरान आपने देखा डीसॉर्प्शन और आपकी सॉर्ट, ये जो प्रोसेस थी आपकी, दोनों प्रोसेस यहाँ पे चली है, एडजॉर्प्शन भी और डिसॉर्प्शन भी आपकी प्रोसेस चली। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं, एक्सटेंट जैसे नाम सजेस्ट करता है कि कितनी हो गई है एडजॉर्प्शन। तो कितनी का कैसे पता चले, तो द लिमिट अप टू विच द एडजॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसे आप क्या कहते हैं, उसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। इट इज गिवन बाय, वो हम कैसे लिख सकते हैं, उसका फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, फार्मूले को लिखते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि एडजॉर्बेंट हमने कितनी अमाउंट में ले रखा है, और एडजॉर्बेट कितनी अमाउंट में जो उसके सरफेस के ऊपर जाके स्टिक हो गया है। मीन द रेशियो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज जनरली गिवन बाय द रेशियो ऑफ amount of adsorbate and the amount of adsorbent। means amount of adsorbate means जो सब्सटेंस जाके स्टिक हो गया उसको x से रिप्रेजेंट करेंगे, और adsorbent जो हमने ले रखा था जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन की प्रोसेस चली, उसको हम amount of adsorbent उसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, means x by m, x divided by m, that called as the extent of adsorption, उसे आप extent of adsorption कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान हीट भी निकली जैसे हमने पहले बताया था। so the amount of heat evolved when 1 mole of the gas get adsorbed on the surface of the adsorbent is called as the heat of adsorption। तो इसलिए heat of adsorption की जब भी हम कोई वैल्यू लिखेंगे, मान लीजिए हम वैल्यू लिख देते हैं 10 किलो जूल, तो वो क्या 10 किलो जूल पर मोल लिखते हैं हम हमेशा, आप ध्यान रखेंगे, आगे आप देख पाएंगे 10 किलो जूल पर मोल, 20 किलो जूल पर मोल, ऐसा क्यों लिखते हैं। ये पर मोल का मतलब क्या, पर का मतलब होता है 1 मोल। 1 मोल कौन लिया हमने, 1 मोल जो लिया है वो ये है, देखो जो हमने अभी आपको बताया था, व्हेन 1 मोल ऑफ द गैस इज एडजॉर्ब्ड, 1 मोल गैस जब एडजॉर्ब होती है, 1 मोल गैस हमें लेनी है, 1 मोल एडजॉर्बेट हमें लेना है, जरूरी नहीं कि वो गैस ही हो, क्योंकि जब ये प्रोसेस चलती है एडजॉर्प्शन की, उस दौरान दो सरफेस के बीच में इंटरेक्शन होनी होती है, उनका नेचर कोई भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि जो आके एडजॉर्ब हो वो गैस ही हो। तो मींस द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द एडजॉर्बेट get adsorbed on the surface of the adsorbent is called as the heat of adsorption। और वो हीट कितनी निकलेगी वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इंटरेक्शन। मींस
एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के सरफेस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीक इंटरेक्शन है या स्ट्रॉन्ग है। अगर इंटरेक्शन आपकी वीक होगी तो लेस हीट विल बी इवॉल्व, अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो मोर हीट विल बी इवॉल्व। तो वो आगे हम पढ़ पाएंगे, ऑन दैट बेसिस आपकी एडजॉर्शन है उसकी आगे क्लासिफिकेशन बनेगी, उनकी टाइप्स बन जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी अगली डेफिनेशन, दैट इज द एक्टिवेटेड एडजॉर्बेंट। एक्टिवेटेड का मतलब क्या है, देखो जैसे आपको स्पून के अंदर यहाँ पे चारकोल दिख रहा है, ये जो चारकोल दिखा ये कैसे हमने प्रिपेयर किया है, देखो जो हमने डाला, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने क्या किया कि कंटेनर लिया, देखो ऐसे चाइना डिश हमने ले ली, चाइना डिश के अंदर यही चारकोल देखो जो हम स्पून से डाल रहे हैं हमने इस चाइना डिश के अंदर डाला, नीचे से हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे लगा दिया, देखो बर्नर, देखो ऐसे बर्नर, ठीक है। और ये चाइना डिश को हमने इसके ऊपर रख रखा था, देखो यहाँ पे जो ट्राइपॉड हमारे पास स्टैंड था, हमने इसको हीट किया, हीट करने से क्या होगा, जो भी इसके अंदर मॉइस्टनेस है, जो भी इसके अंदर नमी थी, जो वेपर्स थे, जो गैसेस फॉर्म के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, वो निकल जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। तो मीन्स अब क्या हुआ, जो एडजॉर्बेंट है ये आपका जो चारकोल है यहाँ पे, जो एडजॉर्बेंट का काम करेगा, इसके सरफेस के ऊपर अब कुछ भी स्टिक नहीं है, जो वाटर वेपर, जो नमी थी या अनवांटेड जो गैसेस थी, अनवांटेड इंप्यूरिटीज थी, वो सारी की सारी हम रिमूव कर चुके हैं बाय द हीटिंग के द्वारा, हीट करके। हमें इसको बर्न नहीं करना, इस सब्सटेंस को खराब नहीं करना, हमें जस्ट इसको वार्म अप करना है ताकि जितनी भी इंप्यूरिटीज हैं वो आपकी लॉस्ट हो जाएं और जो सरफेस है वो एक्टिवेट हो जाए फॉर द फ्रेश एडजॉर्प्शन प्रोसेस, ताकि हमारी जो रिक्वायर्ड एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो हमें चलानी है ताकि वो चल पाए, अनवांटेड इंप्यूरिटीज वहां से रिमूव हो जाए। तो अब उसको कहते हैं कि एडजॉर्बेंट हमने एक्टिवेट कर दिया है। एक्टिवेट मींस उसके सरफेस के ऊपर से अनवांटेड इंप्यूरिटीज को हमने रिमूव कर दिया है। तो मींस द एडजॉर्बेंट व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ऑल द इंप्यूरिटीज फ्रॉम द सरफेस बाय हीटिंग इट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द एक्टिवेटेड एडजॉर्बेंट। अब उसे एक्टिवेटेड एडजॉर्बेंट कहते हैं। नेक्स्ट, अब जब एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन क्या हुई, आपने जो एडजॉर्बेंट आप कैसा लें, आप एक्टिवेटेड एडजॉर्बेंट लें और फिर आप अपनी एडजॉर्प्शन प्रोसेस को चलाएं विद द हेल्प ऑफ द एडजॉर्बेट, उसमें एडजॉर्बेट डाल के, तब वो प्रोसेस एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन कहलाती है। मींस कैसा एडजॉर्बेंट आपको लेना पड़ेगा, एक्टिवेटेड एडजॉर्बेंट अगर आप ले लेते हैं तब एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो कहलाती है एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। मींस व्हाट इज एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच द एडजॉर्प्शन of the adsorbate occur over the surface of the activated adsorbent having no impurities on their surface is called as the activated adsorption। तो उसे आप क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन कहते हैं। इंप्यूरिटी हमने पहले ही हटा दी थी, तो एडजॉर्प्शन ऑफ द एडजॉर्बेट लिखेंगे, यहाँ पे इंप्यूरिटीज नहीं लिखेंगे हम, वो तो क्योंकि हमने हटा दी है। तो मींस क्या बनी डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच the adsorption process takes place over the activated adsorbent is called as the activated adsorption। आप उसे activated adsorption कह देते हैं। तो ये थी आपकी कुछ बेसिक टर्म्स जो इन्वॉल्व होती हैं आपकी सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री।